आप सभी का इस हीली के वेबिनार में स्वागत है। हमारा जो आज का सेशन होता है, ये सेशन हम हीली के नए प्रोस्पेक्ट्स के लिए, हीली का बैकग्राउंड, हीली का टेक्नोलॉजी और इसके यूजेस के बारे में बात करने के लिए कंडक्ट करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हमारे सेशन के दौरान होती है तो आप अपना इस चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या सेशन के अंत में हम अलाउ करेंगे आपको, तो आप अपनी बातें हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं चाहूंगा कि ये एक छोटा सा खूबसूरत सा हीली का वीडियो है, इसको आप एक बार देखें। तब तक कुछ और गेस्ट हमको ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। प्लीज हैव अ लुक टू दिस। It is said that when we are born, our energy is like a light, burning bright, a light that has the power to kindle other lights. How we burn or spend that energy defines our life's body of work, our legacy. Everywhere we look, energy is in demand. But what are we fueling ourselves with? Things like artificial energy drinks that do nothing but perhaps steal life and energy from our future? While it burns, think of that energy as a bank account. You are the account manager. You make deposits or withdrawals. This explains why Nikola Tesla said 100 years ago, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. What once was viewed as magic or science fiction is now a profound part of our everyday lives. We are now learning that everything is energy and frequency, from grass to goats to allergens, even musical notes. And we are starting to assign this energy and frequency in very profound ways. These energetic frequencies are timeless and have been around forever. And while we cannot see them, energy doesn't lie. And now, Healy's well-being innovation is commonly used and recognized worldwide. As the leaders in this technology, Healy World delivers simple, user-friendly, individualized frequencies for your life to 45 countries and growing. The body is a self-healing mechanism. What it needs are the proper raw materials such as energy, nutrients, and activity. Maybe this explains why experts are acknowledging that everything is energy, and energy is everything. Remember, your energy introduces yourself before you ever open your mouth. What was it about you when you had those greatest moments in your life? Falling in love, saying, I do, winning the game, or moving the boardroom, holding that newborn, or simply touching the life of another, and you never felt more alive. That was your energy. Now, everywhere we look, people are wondering where it went. Many would say energetically that they're overdrawn, overspent, riddled with uncertainty, survivors. Come back to you. Bring back that priceless energy on demand. Let the power of Healy pair to the powers of your body. And then, consider that it's not just how we receive this priceless energy, but rather how we spend it. The world will never change in one broad stroke, but rather millions of small strokes from the indiscriminate hands of people like you and me. We are all one collective energy. We are connected. So burn bright. Make a difference. Spend it wisely because you never know. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मेरे पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र तिवारी जी, जो कि नेटवर्क की दुनिया के और हेल्थ वेलनेस के बादशाह हैं, और मेरे साथ में अवनीश मिश्रा जी भी मौजूद हैं, जो कि एक बेहतरीन हीली एक्सपर्ट और हेल्थ वेलनेस एक्सपर्ट हैं, और करीब 1.5 से 2 सालों से हम लोग साथ में हीली में काम कर रहे हैं और हीली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम इस सेशन की शुरुआत करें, उसके लिए मैं अवनीश मिश्रा जी को इनवाइट करूंगा कि
वो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करें। अवनीश जी, आपका स्वागत है। अवनीश जी पिंक एप्लीकेशन लेंगे और उसके बाद में हम आगे चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सेशन आपने ज्वाइन किया है तो 1-1.25 घंटे का समय हमें लगेगा। प्लीज ये समय हमारे साथ इत्मीनान से गुजारिए और आपके जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल उसको पूछने में संकोच ना करें। अवनीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये संडे की सुबह आपने आज इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए दिया है, तो मैं आप सभी लोगों का हीलिंग फॉर वर्ल्ड के इस मीटिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं शुरू करता हूं हीली के बेसिक्स के बारे में। हीली कहाँ से आया है, क्या इसके पीछे का साइंस है, किस तरीके से वर्क करता है, तो उसी के बारे में आज हम पूरी ये चर्चा करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। हम मेरे जो भी को होस्ट है दिनेश जी और शैलेंद्र जी, वो आपके क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो मैं अपने इस वेबिनार को शुरू करता हूं। If you want to find the secrets of the universe, think in the terms of energy, frequency and vibrations। ये बहुत ही फेमस कोट है, बोला गया था निकोला टेस्ला द्वारा। इनका कहना यही था, इनका मानना यही था कि अगर हमें इस पूरे ब्रह्मांड के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है तो हमें हर एक चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस की टर्म्स में पहले देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इस पूरे ब्रह्मांड के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझ सकते हैं या उसको डीपर वे में एनालाइज कर सकते हैं। इसी को आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोट दिया था, एक कथन दिया था। इन्होंने आज से करीबन 100 साल पहले ये बात कही थी, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये इतने विजनरी साइंटिस्ट इसीलिए नहीं माने जाते थे क्योंकि ये बहुत आगे तक का देख पाते थे, समझ पाते थे, और यहीं से शुरुआत हुई थी क्वांटम फिजिक्स की। इनको जनक बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स का, और इनका ये जो कोट है आज हम देख रहे हैं ये रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। हीली डिवाइस हम लोगों को सबके पास में आ चुका है, जो कि एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मेडिसिन डिवाइस है। किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके पीछे का साइंस है, उसी में हम आगे चलते हैं। अब आपने अभी तक ये सुना है कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइस है। इससे कोई घबराने वाली चीज नहीं है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब मैं बहुत आसानी से समझाता हूं। क्वांटम फिजिक्स मतलब चीजों को और ज्यादा डीपर वे में जाके एनालाइज करना, वही क्वांटम फिजिक्स है। आसान भाषा में अगर हम समझे तो अगर हम अपनी इस शरीर, अपनी इस बॉडी को भी क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से क्वांटम लेवल पे जाके अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इस चार्ट में देखिएगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। सबसे छोटी चीज होती है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, देन बॉडी। इस पूरी हायरार्की में हमारी बॉडी बनी हुई है। ये चीज आप लोग सब जानते हैं। अब अगर हम इस शरीर को, इस बॉडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल जूम करके अगर देखते हैं, तो जब टिश्यू एंड ऑर्गन्स को और जूम करके देखा जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। सेल्स को और अंदर जाके देखा जाएगा तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स को और जूम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाएगा तो हमें एटम्स मिलते हैं। एटम्स के बाद मिलते हैं हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और लास्ट में हम जहां जिस जगह पहुंचते हैं वहां हमें क्या मिलता है? एक एनर्जी मिलती है जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है, और उसी को साइंस की भाषा में द इंफॉर्मेशन फील्ड बोला गया है। क्वांटम फिजिक्स में, मार्कस शिमिके की भाषा में उसी को इंफॉर्मेशन फील्ड बोला गया है। तो हमारा जो ये शरीर है, इसका जो डीपेस्ट रूट है वो भी क्या है? एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है। यही निकोला टेस्ला ने बोला था, अगर हम अपने बॉडी के, शरीर के चीजों को और गहराई से समझना चाहते हैं और उनको करेक्ट करना चाहते हैं, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपने क्वांटम लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस पे काम करना पड़ेगा। अगर वो करेक्ट होता है तो पूरी ओवरऑल बॉडी हमारी करेक्ट हो जाती है और हम एक होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त होते हैं और अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को एक अच्छा हेल्दी बनाते हैं। अब हीली क्यों इतना यूनिक है, सबसे ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हीली का साइंस क्या है, अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ये दिया था रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम ने। ये नोबेल प्राइज कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इस मॉडल को समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। जैसे हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आप कोई भी चीज खाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से डीपेस्ट रूट लेवल पे जब हमारी सेल्स को भी देखा जाएगा तो हमारी जो हर एक सेल्स होती है उसका भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब सेल्स के काम करने का एक जो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है? वो अगर
-70 से -90 मिली वोल्ट सेल का जो मेम्ब्रेन वोल्टेज है, अगर वो -70 से -90 मिली वोल्ट रहता है तो वो सेल यंग और हेल्दी सेल होती है। यंग और हेल्दी सेल रहेगी तो वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेगी, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग रहेगा। तो जिस भी ऑर्गन की वो सेल रहेगी उस ऑर्गन की फंक्शनैलिटी बहुत परफेक्टली काम करती रहेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, ड्यू टू टॉक्सिन्स, एनवायरमेंट पोल्यूशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना बहुत चेंज हुआ है, हमारी एक्टिविटी हम लोग करते नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से जो ड्रेस्टिक चेंजेस आ रहे हैं वो ये हो रहा है कि डीपेस्ट रूट लेवल पे जो हमारी सेल्स है वो अपना पोटेंशियल वोल्टेज को लूज करती जा रही है, मतलब उसका पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होने लग रहा है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, क्या होता है आप देखेंगे इस मॉडल में, जैसे ही -70 से -60 मिली वोल्ट आया वो एजिंग सिक सेल हो जाती है। -55 पे एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाते हैं, -45 पे इन्फ्लेमेशन, -35 पे एडीमा, -25 पे ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है और -15 पे जाकर 15 मिली वोल्ट पे जाकर वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ट्यूमर सेल अपना पोटेंशियल वोल्टेज को और ड्रॉप कर लेती है तो -12 मिली वोल्ट के नीचे सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कैंसेरियस सेल्स बोला जाता है, कैंसर जो स्प्रेड होने लग जाता है। तो बेसिकली जो कैंसेरियस सेल्स होती हैं उनका जो वोल्टेज होता है वो -12 मिली वोल्ट के नीचे होता है और उसके बाद 0 मिली वोल्ट पे उसकी डेथ हो जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है। तो यही हमारे एक सेल का पूरा लाइफ साइकिल है। तो हमारी अगर सेल यंग और हेल्दी रहती है तो क्या होता है, हमारा पूरा ओवरऑल जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अगर यंग और हेल्दी है तो इसका मतलब है वो ऑर्गन अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेगा। तो यही एक स्टडी में पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स देके, फ्रीक्वेंसीज देके हमारी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को अगर वापस बढ़ाते हैं, रीगेन करते हैं, तो क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन 500% तक इंक्रीज हो जाता है। अब एटीपी प्रोडक्शन बड़ा साइंटिफिक टर्म लग रहा है, आसान भाषा में बताऊं, सेल के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 500% तक बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस है वो 70% तक, जो कि बिल्डिंग, तीसरा इंक्रीजिंग अमीनो एसिड्स जो है वो 40% तक हो जाता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन के। तो ये तीनों इसी स्टडी के ऊपर मतलब ये इसी स्टडी में पाया गया कि इन तीनों की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को कैसे रीगेन कर सकते हैं और उससे क्या उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, हम लोग वापस एक अपनी बॉडी में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित है हीली इसी तरीके से वर्क करता है। हीली इज अ माइक्रो करंट के थ्रू हमारी सेल्स को वापस उसके पोटेंशियल वोल्टेज को रीगेन करता है। अब यही जो मैंने आपको सेल का बताया, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही जिम्मेदार होता है एटीपी प्रोडक्शन के, मतलब ये सेल का हमारे एक पावर हाउस होता है। और अगर यही आप इसको थोड़ा और डीपर वे में देख पाएंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज है -70 से -90 मिली वोल्ट रहता है, तो वो सेल यंग और हेल्दी सेल रहती है। अब ये इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में यही पाया गया एक स्टडी के आधार पे, 40% तक हम एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को, 70% प्रोटीन सिंथेसिस और एटीपी प्रोडक्शन 500% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब हीली क्यों इतना यूनिक है और क्यों इतना फास्ट पॉपुलर हो रहा है, क्यों इतने जबरदस्त इसका रिजल्ट्स आते हैं, उसके पीछे का एक कारण यही है कि हीली 2 डायमेंशंस में काम करता है। अब 2 डायमेंशंस क्या, हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है इसके अलावा हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है। हमारी 2 बॉडीज होती हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक हमारी एनर्जी बॉडी, जिसको बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है साइंस की भाषा में या मार्कस शिमिके की भाषा में। अगर हम अपने एंशिएंट विजडम, हमारे पुरानी एंशिएंट साइंस को समझेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करी गई है प्राण वायु की। जो हमारे शरीर में एक प्राण वायु होता है, प्राण एनर्जी होती है, उसी को ही बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला गया है क्वांटम साइंस में। और चाइना में इसी को ची बोलते हैं या की बोलते हैं। तो हीली जो है दोनों डायमेंशंस पे काम करता है, जैसा कि आप इस सिंबल में देख पा रहे होंगे, हीली सेंटर में है। ये फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है और माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को भी बढ़ाता है। तो जब दोनों बॉडीज हमारी एक सिंक में जब करेक्ट होती हैं, तभी हम एक आइडल एनवायरनमेंट में आते हैं और हमारी बॉडी एक होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त होती है। तो हीली जो है इसी वजह से यूनिक है क्योंकि ये एक साथ दोनों बॉडीज के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करता है और उसी को द इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल बोला जाता है, जो हमारा बायो एनर्जेटिक फील्ड है। अब हीली
और हीली से पहले भी आपने सुना होगा बहुत सारी डिवाइसेस आती है, माइक्रो करंट थेरेपी में, मैग्नेटिक थेरेपी में, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन हीली ही सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ और हीली से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है हीली एक इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अब इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस से क्या मतलब है? मतलब ये आपकी बॉडी को पहले रियल टाइम में एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करनी है जिससे आपकी सेल्स को करेक्ट किया जाएगा या आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट किया जाएगा, ये हीली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है और क्वांटम सेंसर है, ये दोनों मिलके इस डिसीजंस को लेते हैं। और यही कारण है हीली का कि हीली बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अभी इसको मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में अगर एग्जाम्पल से बताऊं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अगर लिवर का प्रोग्राम ले रहा हूं, ठीक है, तो वो लिवर का सेम प्रोग्राम हीली में जो है वो मेरे लिए अलग तरीके से चलेगा और आपके लिए अलग तरीके से चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपका खाना पीना अलग है, आपके लिवर की कितनी सेल्स फंक्शनैलिटी में इंपैक्ट हुआ है, कितनी सेल्स परफेक्टली काम नहीं कर रही है, या उनको करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज के सेट को डिलीवर करना पड़ेगा, ये जो डिसीजन है, यही डिसीजन हीली को बहुत यूनिक बनाता है। और हीली एक इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, और इसी वजह से ही लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सबके लिए ये हीली यूनिक तरीके से प्लान करके और एनालाइज करके फिर फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर करता है। इसी वजह से हीली यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है, दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, और ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अब हम लोग इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी साइंस की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ड्यू डिलिजेंस भी करना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन इसके फाउंडर्स हैं, कौन इसके पीछे लोग हैं, मैनेजमेंट में कौन है। तो ये मैं दो विजनरी फाउंडर्स के बारे में आपको बताता हूं, मार्कस शिमिके एंड क्रिस्टन हेल्पर। मार्कस शिमिके जो है ये फाउंडर एंड इन्वेंटर है टाइम वेवर कंपनी के। टाइम वेवर फ्रीक्वेंसी थेरेपी में पिछले 15-20 सालों से वर्क कर रही है, और उसी की सब्सिडरी है हीली। तो टाइम वेवर इसका पिता समझ लीजिए, और उसी की सब्सिडरी कंपनी है हीली। मार्कस शिमिके ने टाइम वेवर की स्थापना आज से 15 साल पहले करी थी। इनकी एक्सटेंसिव स्टडी रही है हमेशा फिजिक्स में एंड फिलॉसफी में। अगर मैं बताऊं तो ये भारत में भी हरिद्वार में देव संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ 10 से 12 साल रहे हैं। भारत में इन्होंने एनर्जी हीलिंग को बहुत अच्छे से डीप में गहराई में समझा, और उसके बाद जर्मनी में जाके इन्होंने टाइम वेवर की स्थापना करी थी। तो इनका हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि ह्यूमन को एक आइडियल हेल्थ देना, एक होलिस्टिक हेल्थ देना, और जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेसिबल कराना ऑल द ह्यूमन, यही इनका विजन रहा है। पूरे अर्थ पे सबको हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना, इसी में इन्होंने काम किया है। 25+ इन्होंने बुक्स लिखी है जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, और बहुत सारे साइंटिस्ट, फिजिशियंस एंड थेरेपिस्ट एंड इंजीनियर्स इनके साथ वर्क करते हैं, इनके विजन को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग भी इन्हीं के विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज हीली की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं पूरी दुनिया को, सब लोगों को एक अच्छी हेल्थ देना। क्रिस्टन हेल्पर जो है, अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना चीजें हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पैसे की। तो इसमें फंडिंग करी क्रिस्टन हेल्पर ने। क्रिस्टन हेल्पर को फाउंडर है हीली के। बैकग्राउंड से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, और ये एंटरप्रेन्योर है एंड फाउंडर है सुपर फंड हेज फंड के। और इनके जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो है इनके सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में, वीगन में, वेजिटेरियन में, न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट्स में, और नेचुरल तरीके से बॉडी को किस तरीके से हील किया जाए, किस तरीके से करेक्ट किया जाए, उसी दिशा में इनका भी विजन है, उसी दिशा में इन्होंने काम किया। तो ये दो विजनरी फाउंडर्स हैं हमारे हीली के। अब हीली क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है, तो हमें ये भी एश्योर होना चाहिए कि मैं फ्रीक्वेंसीज ले रहा हूं या माइक्रो करंट्स ले रहा हूं तो कहीं ये मेरी बॉडी को हार्मफुल तो नहीं होगा। तो इस चीज की एश्योरिटी के लिए आप ये एक सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हीली एक मेडिकल प्रोडक्ट है। ये कोई नॉर्मल आम प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस, जो कि हीली जर्मनी जो हीली GmbH है उसको मिला हुआ है। हीली इज अ क्लास 2A मेडिकल डिवाइस। उसमें कैटेगरी में भी देखेंगे अगर आप, तो क्लास 2A मेडिकल डिवाइस है, मतलब इसको कोई भी आपके घर में इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ी सी बेसिक बस नॉलेज लेके। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप सर्टिफाइड हैं उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो हीली एक क्लास 2A मेडिकल डिवाइस है, ISO 13485 सर्टिफिकेट है,
तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए 0.0001% भी हार्मफुल नहीं होगा इन एनी केस। यही इसका मतलब है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आपको। और हीली एफडीए के द्वारा भी क्लियर्ड है। तो ये हीली के सर्टिफिकेशंस हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस, 2500 प्रोफेशनल यूजर्स। ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी तो बहुत बढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल यूजर से मेरा मतलब है जो लोग थेरेपी सेंटर्स चलाते हैं, जिनके यहाँ डेली 100 200 300 लोग आते हैं और थेरेपी लेके जाते हैं। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में 2500 प्लस प्रोफेशनल यूजर्स हैं जो हीली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 45 प्लस कंट्रीज में हीली एग्रेसिवली पहुंच चुका है और इनके बहुत बड़े विजन है, बहुत तेजी से पूरे ग्लोबली इसको एक्सपेंड करने के। नेक्स्ट जो इनके मार्केट्स हैं वो कोरिया है, मैक्सिको है और कनाडा है, जहां ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। हीली का मीटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब हीली 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी इनकी 100% पेटेंटेड है। और इनका बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। क्राजलीन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां हीली का इन्वेंशन हुआ, जहां हीली बना है। तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जर्मनी की है या चाइना में या कहीं ताइवान में उसको मैन्युफैक्चर करके और फिर इस तरीके से दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। अब हीली, मैं आपको बता रहा हूं इतनी सारी चीजें इसके बारे में। हीली जो है किसी बीमार लोगों का डिवाइस नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं तो ही मुझे हीली लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीली सबकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हीली में 9 मिलियन प्लस फ्रीक्वेंसीज हैं और हम ह्यूमंस हमेशा एक ग्रोथ मोड में होते हैं। तो हमें हर एक चीज में हमेशा एक ग्रोइंग और ग्रोथ चाहिए रहती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे। हमारे मेरिडियंस, हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए, अगर हम कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई और करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और मेमोरी को एनहेंस करने के लिए ब्यूटी, कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन अच्छी दिखे, हेयर अच्छे दिखे। फिटनेस में स्टेमिना आपका अच्छा हो, मसल्स ग्रोथ अच्छी रहे, रीजनरेशन प्रॉपरली हो, वेल्थ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी। तो मेरा बताने का मतलब है हीली कोई बीमार लोगों का डिवाइस नहीं है। इसको आप अपने किसी भी डायमेंशन में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो आप हीली को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हीली में 9 मिलियन प्लस फ्रीक्वेंसीज है और वो 9 मिलियन में से सेलेक्ट करेगा कि आपकी बॉडी के लिए उस चीज को करेक्ट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी डिलीवर करनी है। वो इसका क्वांटम सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो यही हीली की खूबी है। ये कुछ पॉपुलर एडिशंस है, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। कस्टमाइज योर हीली, मतलब मैंने आपको बताया, आप किसी भी लेवल पे, चाहे फिजिकल वेलनेस में, चाहे एनर्जी बॉडी में, चाहे मेंटल वेलनेस में, स्लीप इंप्रूव करने में, करियर एजुकेशन, फिटनेस, ब्यूटी, स्किन, वाइटलाइजेशन एंड डिफेंस, हर चीज में हीली के आपको प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल मिलते हैं। हीली किसी बीमार लोग का डिवाइस नहीं है, ये हर एक घर की नीड है। अब मैं अपने इसकी पिंक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं। हीली में 3 एप्लीकेशंस होती हैं। पहली होती है पिंक एप्लीकेशन, जो कि माइक्रो करंट्स के द्वारा, तारों के द्वारा हमारे बॉडी को, सेल्स को माइक्रो करंट से रिजुविनेट करती है। जैसा मैंने आपको इसका साइंस बताया था, सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज बढ़ाती है। दूसरा इनका एप्लीकेशन होता है हील एडवाइजर सर्च, जो कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर होता है। वो मदद करता है आपको कि कौन से प्रोग्राम्स आपको यूज करने हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो उसमें आपकी मदद करता है। और तीसरी इसमें होती है ब्लू एप्लीकेशन, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करती है। तो मैं 1 बाय 1 आपको एक एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये हीली कितना छोटा सा डिवाइस है। बहुत छोटा डिवाइस है, आप देखेंगे मेरे हथेली के साइज का डिवाइस है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत जबरदस्त चीज है। और ये इसके साथ जब आप हीली खरीदते हैं तो हीली के बॉक्स में आपको एक तो ये मिलता है, जिसमें इसका क्वांटम सेंसर बीच में लगा हुआ है, सेंटर में लगा हुआ है। उसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं कुछ अटैचमेंट्स, जिन अटैचमेंट्स को इस्तेमाल करके हम लोग प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। जैसा ये एक अटैचमेंट होता है, इसको स्टिकी पैड बोलते हैं। स्टिकी पैड को आपको जहां पर भी पेन है या कोई स्कार्स है, जब हम लोकल प्रोग्राम्स लेते हैं स्किन पे, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इसको जहां पे, अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ लगाना है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ चिपका लूंगा, यहाँ अपने वायर्स को लगाऊंगा एंड देन मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लूंगा। कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड आता है वो होता है हमारा
ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड। ये जो ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड है ये इस तरीके से कान में लगाया जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन के प्रोग्राम हो गए, माइग्रेन के हो गए, एंजाइटी, इंसोमिया, डिप्रेशन, ये सारे प्रोग्राम्स के को जब लेना होता है तो हमें इस वाले इलेक्ट्रोड को लगाना होता है, ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड को। भारत में ये उपलब्ध होता है, यूएस में इसकी जगह स्टिकी पैड ही आपको मिलता है। तीसरा जो सबसे मोस्ट यूज आने वाला जो इनका इलेक्ट्रोड है वो है रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड। ये इस तरीके का दिखता है, ये सिलिकॉन के बैंड्स हैं जो कि इसको आप इस तरीके से, इसमें वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वायर से ये जो वायर है इससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से इसको कलाइयों पे पहना जाता है, जो जैसे हम घड़ी पहनते हैं इस तरीके से इसको कलाइयों पे इस तरीके से पहना जाता है। जैसे ये मैंने एक यहाँ लगा लिया, दूसरा मैंने यहाँ लगा लेता हूं, दूसरे हाथ पे, दोनों हाथ पे लगाना जरूरी होता है। ये दोनों इस तरीके से लग जाते हैं, एक इसका, और जो जिसका दूसरा छोर है वो आपको, ये जो हीली है, हीली के नीचे दो होल्स होते हैं, यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से प्लग इन कर देना होता है और उसके बाद आप हीली को पावर ऑन करके स्टार्ट कर लेंगे और उसको हैंग कर लेंगे। तो यही बहुत सिंपल है इसको यूज करना, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो आपके घर में एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं हीली की एप्लीकेशंस के बारे में। यहां आप देख पा रहे हैं हीली की 3 एप्लीकेशंस है। हील एडवाइजर जिसके बीच में ब्लू डॉट बना हुआ है, दूसरा हीली जिसके बीच में पिंक डॉट बना हुआ है, और तीसरा हील एडवाइजर सर्च जिसके बीच में वेव बनी हुई है। तो मैं यहाँ 2 हीली पिंक ऐप और हीली एडवाइजर सर्च के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं हीली पिंक ऐप से कनेक्ट कर लेता हूं, इसको मैंने ओपन किया। ये आपके ब्लूटूथ से पेयर होके आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद वहां जो भी डिवाइस आपने लिया है जिसमें जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स आपको शो होने लग जाएंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देता हूं तो ये मेरा हीली डिवाइस कनेक्ट हो गया है। ये लास्ट प्रोग्राम मैंने ये रन किया था इसलिए ये अभी यहां दिख रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ये आप देखेंगे हीली का जो फ्रंट है वो इस तरीके से दिखता है जब पिंक एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जो जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ शो होने लग जाते हैं। अभी इन प्रोग्राम्स को मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको अपने किसी भी डायमेंशन में ग्रोथ चाहिए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम मेरे लिए है, मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो आप देखेंगे मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूं। गोल्ड साइकिल इनका सबसे पहला फंडामेंटल प्रोग्राम है, गोल्ड साइकिल, जो कि पोर्तुगीज साइंटिस्ट नूनो नीना ने बनाया है। इसमें 1,44,000 गोल्ड फ्रीक्वेंसीज है और वो गोल्ड फ्रीक्वेंसीज पेटेंटेड है नूनो नीना द्वारा और इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए एक तरीके से बेस बिल्डिंग का काम करता है। जो हमारे बॉडी के, शरीर के जो बेसिक ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, इनको आपस में सिंक्रोनाइज करने में, आपस में बैलेंस करने के लिए ये प्रोग्राम पूरा बना हुआ है। और इसमें आपकी, जब हम लोग हीली परचेज करते हैं तो शुरू के 4 से 7 दिन आपको यही गोल्ड साइकिल प्रोग्राम यूज करने होते हैं ताकि आपकी बॉडी में एक बेस बन जाए। जब बेस बन जाएगा तभी आप एडवांस फ्रीक्वेंसीज लेंगे तो उनका रिजल्ट्स आपको और अच्छे दिखेंगे। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं, गोल्ड साइकिल इज अ मस्ट, आपको हर एडिशन में मिलता है। इसमें पहला देखेंगे प्योर। प्योर का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स के लिए। हमारे शरीर में प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हमारे किडनी और हमारे लंग्स, यही हमारे बॉडी के प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स है। उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनकी सेल्स को पोटेंशियल वोल्टेज को करेक्ट करने के लिए प्योर फंक्शन है, प्योर प्रोग्राम है। फिर उसके बाद केयर, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, बैलेंस, ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए, सारे ऑर्गन्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बीइंग आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, दोनों को वननेस, दोनों को एक सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए बीइंग प्रोग्राम होता है। एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज। एनर्जी, जब आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, लोग इसके लिए चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, इस तरीके की चीजें लेते हैं जो कि उनको एनर्जी देती है। वही एनर्जी प्रोग्राम आप ले सकते हैं आपकी बॉडी में, उसी तरीके से वर्क होता है। रिलैक्स, जब आप बहुत स्ट्रेस में हो या बहुत फिजिकल वर्कआउट किया हो, आपको रिलैक्स चाहिए तो आप रिलैक्स प्रोग्राम ले सकते हैं। रिलीज एक तरीके का पूरे बॉडी के लिए एक पेन किलर होता है, जो कि आपको, अगर शरीर में कहीं भी पेन है तो आप रिलीज प्रोग्राम ले सकते हैं।
सेकंड आप पेज देखेंगे पेन साइकी। पेन साइकी में क्रॉनिक पेन, बैक पेन, टीथ जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारे प्रोग्राम वेल अंडरस्टूड है। किस लिए प्रोग्राम्स है, किस तरीके से आपको उसको लेना है, बहुत सिंपल है, वो अभी आपको बता दूंगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड माइग्रेन के लिए लगाते हैं, तो पता कैसे चलता है? माइग्रेन पे मैंने क्लिक किया, आपने देखा यहाँ सिंबल बना हुआ आ गया ईयर्स का, तो ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड्स आपको पहनने हैं और उसके बाद आपको सिर्फ स्टार्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। आपका प्रोग्राम 20 मिनट का है, 20 मिनट में आपका जो माइग्रेन है गायब हो जाएगा। इसी तरीके से इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज के इसमें प्रोग्राम्स हैं। आप थर्ड प्रोग्राम पेज देखिए, लर्निंग। लर्निंग में लर्निंग की नीड हमको हर एज में होती है, चाहे हम ओल्ड एजेस में हो, चाहे छोटे बच्चे हों घर में। लर्निंग एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखता है, तो उसके लिए हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो लर्निंग सिस्ट, लर्निंग अक्यूट, अब अगर आप जॉब में हैं तो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनको आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी हमेशा एनहेंस्ड रहनी चाहिए। उसके लिए लर्निंग सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, लर्निंग अक्यूट है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, एग्जाम, स्ट्रेस। अब आप देखेंगे यहाँ सिस्ट और अक्यूट दो प्रोग्राम है एक ही चीज के, तो इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। लर्निंग सिस्ट और अक्यूट में क्या डिफरेंस है? सिस्ट का मतलब होता है सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स, अक्यूट का मतलब है कि ए पेरेंट अभी उसकी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसंट्रेशन सिस्ट और कंसंट्रेशन अक्यूट की बात करूं, तो कंसंट्रेशन सिस्ट में तब लूंगा जब मेरे को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम काफी पुरानी है, और ये मतलब ये प्रॉब्लम है ही मेरे साथ में कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या पिछले मतलब कुछ भी चीज लेकर बैठता हूं मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे कंसंट्रेशन सिस्ट प्रोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टमैटिक प्रोग्राम की जरूरत है मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेरी काफी पुरानी है। कंसंट्रेशन अक्यूट मतलब कि अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा चल रहा है मेरे एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अगर कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरा एग्जाम है लेकिन मेरी घर में शादी भी है, ठीक है, तो मैं अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ने के लिए, तो मुझे ऐसे सिनेरियो में कंसंट्रेशन अक्यूट लेना पड़ेगा। वो आपको इमीडिएट मदद करता है आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में। तो सिस्टमैटिक और अक्यूट में यही डिफरेंस है कि अक्यूट कब लेना है और सिस्टमैटिक कब लेना है। मेमोरी का प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग काम करता है। ओल्ड एजेस में जो बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी मेमोरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीके होने लग जाती है, तो मेमोरी प्रोग्राम उनकी मदद करता है उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने में, सो दैट उनकी जो मेमोरी लैकिंग की प्रॉब्लम है वो ना आए। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, फिटनेस। इधर देखेंगे आप वेट, मसल, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन। तो फिटनेस की रिक्वायरमेंट ये सिर्फ फिटनेस एंथुसियास्ट कोई नहीं है कि आप बहुत जिम जाते हैं या बहुत वर्कआउट करते हैं तो ही आपको फिटनेस प्रोग्राम चाहिए। ओल्ड एजेस में मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, मसल प्रोग्राम ले सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से हमारे टिश्यू ब्रेक हुए हैं तो हमें रीजनरेशन लेना चाहिए, स्ट्रेंथ लेना चाहिए, सर्कुलेशन लेना चाहिए। अगर हमने बहुत कोई फिजिकल वर्कआउट किया है तो हमारे बहुत सारे टिश्यूज ब्रेक होते हैं और सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो सर्कुलेशन का लेना चाहिए जिससे आपको वापस बॉडी रिपेयर और रीस्टोर करती है। वेट का प्रोग्राम जो है वो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप वेट प्रोग्राम लेंगे और आपका वेट कम हो जाएगा, आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट प्रोग्राम ले लें हीली से और कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट प्रोग्राम आपकी मदद करता है आपका जो भी रूटीन है उसको एम्पलीफाई करने में। लाइक अगर आप कोई आपने डाइट ली है और आप वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर 5 महीने में आपका 5 किलो वजन कम होता है, तो वेट प्रोग्राम अगर ले रहे हैं साथ में और वही सेम डाइट और सेम एक्टिविटी और सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो गोल आपको 5 महीने में मिल रहा था वो आपको 3 महीने में मिल सकता है, 2.5 महीने में मिल सकता है। तो ये आपके प्रोसेस को एम्पलीफाई करता है, मतलब उसमें मदद करेगा, आप जल्दी आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये उन ऑर्गन्स को हार्मोनाइज करेगा जो ऑर्गन फंक्शन करते हैं वेट लॉस के लिए। जैसे फैट को डीकम्पोज करना है, बर्न फैट को एज अ फ्यूल बर्न करना है, तो इसके लिए जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ये उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। तो सिर्फ आइडल वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, वेट का प्रोग्राम लेने से आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपना खाने पे, एक्टिविटी पे, अपने पानी पे, उन सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी मदद करेगा उस चीज को फास्ट अचीव करने में। नेक्स्ट जाए हम लोग अगर जॉब स्लीप पे आप देखेंगे एक्टिवेशन है, पॉजिटिव थॉट्स है, बैलेंस नर्व्स, फटीग, एग्जॉशन अक्यूट, एक्सट्रीम स्ट्रेस,
फिर स्लीप के 4 प्रोग्राम है, स्लीप सिस्ट, बेड रेस्ट, बैलेंस स्लीप, फाइन फ्लो। तो अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस रहता है तो हमारे को स्लीप डिप्राइव्ड लोग हो जाते हैं, स्लीप में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं हो रही है और क्वालिटी स्लीप नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन की जो क्लींजिंग अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगी जब हम सोने के दौरान, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। तो सोना जो है वो आपका क्वालिटी सोना होना चाहिए, मतलब क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अल्कोहल लेके सो रहे हैं और उसको आप सोना समझे, वो आप बेहोश हो रहे हैं। आप दवाई लेके सो रहे हैं तो वो भी आप बेहोश हो रहे हैं। उसमें आपके बॉडी के कोर जो फंक्शनैलिटी है वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी, जो बॉडी एक साइकिल में जानी चाहिए स्लीप के दौरान, और हमारे इन सारी चीजों को करेक्ट करती है हमारे स्लीप में। रीस्टोर होती है बॉडी, रीस्टोर करती है, मेटाबोलाइज करती है चीजों को, क्लिनजिंग करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, रिपेयर करती है। ये सारी चीजें हमारे सोने के दौरान होती है। तो ये तभी हो पाएंगी जब आपकी वो स्लीप क्वालिटी स्लीप होगी। आप अगर अल्कोहल लेके सो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कॉफी पिएंगे तो ही नींद आएगी, या फिर चाय पिएंगे तो ही नींद आएगी, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आपको, इसका रिपल इफेक्ट आगे चल के नजर आता है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो स्लीप के जो प्रोग्राम्स है बहुत ही अमेजिंग शानदार प्रोग्राम्स है जो आपकी मदद करते हैं आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस के जो प्रोग्राम्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो मेंटली थोड़ा वीक है या अनस्टेबल है। जैसा कुछ लोगों में आपने देखा होगा, कुछ छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्वभाव चेंज हो जाता है, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशनल हो जाते हैं या एक्सट्रीम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सब मेंटल इम्बैलेंसेस है। इनको करेक्ट करने के लिए इसके हीली के बहुत ही प्यारे और सिस्टमैटिक डिजाइन प्रोग्राम्स है, और इनके जो रिजल्ट्स हैं आपको हार्डली 1 से 2 वीक में ही दिख जाएंगे। मतलब इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स आते हैं और बहुत जल्दी वर्क करता है ये, क्योंकि ये हमारे एनर्जी से रिलेटेड ही पूरा मतलब वर्क है, 100% एनर्जी से रिलेटेड ही है। तो इसमें इनर स्ट्रेंथ है, इमोशनल वेलबींग, फील गुड सिस्ट है, कंटेंटमेंट सिस्ट और कंटेंटमेंट एक्यूट। कंटेंटमेंट सिस्ट, कंटेंटमेंट एक्यूट जो लोगों को लत लगी हुई होती है, जैसे किसी को सिगरेट की लत है, किसी को अल्कोहल की लत है और वो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटेनमेंट सिस्टमैटिक प्रोग्राम लेना होता है। कंटेनमेंट अक्यूट लेना होता है किस टाइम पे, जब जैसे मुझे अभी सिगरेट पीने की लत हो, मतलब अभी सिगरेट पीना है मुझे, मतलब मन कर रहा है, किसी को ऐसा हो तो, लेकिन वो नहीं पीना चाहता, वो अपनी आदत को छोड़ना चाहता है, तो उस टाइम पे उसको कंटेनमेंट अक्यूट प्रोग्राम लेना चाहिए। तो वो आपकी मदद करेगा, जो भी आपके वो डोपामीन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसको रोकने में, सो दैट आपको वो क्रेविंग जो है उसको आप स्लो डाउन कर सकें और धीरे धीरे आप अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत ही शानदार काम करते हैं, बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट आते हैं। इनर यूनिटी, वेलबींग सोल, मेंटल बैलेंस अक्यूट। नेक्स्ट, ब्यूटी स्किन। कौन नहीं चाहेगा स्किन अच्छी रहे, ब्यूटी जो है हमारी वो ग्लोरीफाइड रहे हमेशा, और हमारे हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है हेयर, स्किन, एजिंग को स्लो करने के लिए, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, सपोर्ट स्किन लोकल, स्किन इम्प्योरिटी सिस्ट, मतलब जिनको एक्ने, कील, मुहासे वगैरह होते हैं, मतलब स्किन लेयर पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाती सही ढंग से, और उसकी वजह से आपको कील, मुहासे और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोर्ट स्किन लोकल है, स्कार्स लोकल है, स्कार सिस्ट है। स्कार्स लोकल और स्कार सिस्ट का मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके स्कार है और उसको आपको ठीक करना है तो आपको वहां स्कार्स लोकल लेना पड़ेगा। और अगर आपके पूरी बॉडी पे कहीं कहीं स्कार्स है और आपको उस पर वर्क करना है तो स्कार सिस्टमैटिक लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ब्यूटी एंड स्किन के प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट देखेंगे आप बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2। ये जो 2 प्रोग्राम पेजेस हैं ये आपके एक तरीके से डिजिटल फर्स्ट एड किट है आपके घर का। मैं डिजिटल फर्स्ट एड किट से मेरा क्या मतलब है, जैसा हम लोग अपने घरों में एक बॉक्स रखते हैं दवाइयों का जनरली, जिसमें हमारे कोल्ड कफ की दवाई हो गई, मोशंस की दवाई हो गई, एलर्जीज की दवाइयां रखते हैं हम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसकी दवाइयां रखते हैं। तो वो एक किट बना के हम लोग अपने घर में दवाइयों का केमिकल का बॉक्स रखते हैं। तो वही उसी का ही रिप्लेसमेंट है एक तरीके से बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड 2। ये आपका डिजिटल फॉर्म में आपका फर्स्ट एड किट है। इसमें आप प्रोग्राम देखेंगे, इम्यून सिस्टम है, चिलिंग प्रोग्राम आपके कोल्ड एंड कफ के लिए होता है। अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, अगर आप केमिकल की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 3 से 4 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ेगा, तब आपको उसमें फर्क दिखता है। चिलिंग का प्रोग्राम अगर आपने 2 दिन ले लिया
आज एक सुबह ले लिया, शाम में ले लिया, अगले दिन सुबह ले लिया, तो कितना भी कैसा भी आपको कोल्ड एंड कफ हो उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है नेचुरल तरीके से। कोई केमिकल आपकी बॉडी में इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो इन्फ्लेम्ड हुई है उसको वो हार्मोनाइज कर देता है, उसको डीफ्लेम करता है। चिलिंग प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग है। कुछ लोग कई बार तो 51 मिनट का प्रोग्राम है, हल्का फुल्का अगर होता है तो 15-20 मिनट का प्रोग्राम चला, उसी में आपको फर्क दिख जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी आपका प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से एलर्जीज के लिए, जिनको एलर्जीज होती हैं उनके लिए वर्क करता है। जो हम लोग सिट्रिजिन खाते हैं, किसी भी टाइप की एलर्जी है तो हाइपर सेंसिटिविटी ले सकते हैं। आईज है, हॉर्मोन्स, इंटेस्टाइन, नर्व्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके से जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन लोकल। इसके बाद सेकंड आप देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बैक्टीरिया, टॉन्सिल्स, लिवर, फूड सेंसिटिविटीज मतलब जैसे कई बार किसी पर्टिकुलर फूड से हमें इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, जैसे सिट्रस कुछ लोग नहीं खाते, या फिर कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, दूध नहीं पीते या दही नहीं पीते, दही नहीं लेते, छाछ नहीं लेते, तो फूड सेंसिटिविटीज उनके लिए वर्क करता है। टॉक्सिन्स प्रोग्राम जो है आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने में मदद करता है, और जब बॉडी का शुद्धिकरण, जब टॉक्सिन्स मतलब डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से प्रॉपर होता है, तभी बॉडी आपकी एक आइडल एनवायरनमेंट में रहती है और परफेक्टली काम करती है, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। तो टॉक्सिन प्रोग्राम बहुत अच्छा, अमेजिंग रिजल्ट है इसके। हेड है आपका वर्टाइगो पेशेंट्स के लिए, जिनको डीजीनेस होती है, चक्कर से आते हैं जरा सा, या मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह उठते ही थोड़ा चक्कर से आएंगे, तो उनके लिए हेड प्रोग्राम है। प्रोस्टेट है, लंग्स है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है उनकी वो हॉर्मोन्स के लिए बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। जॉइंट बोन्स, साइटिका लोकल। मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, अब ये आ गई है हमारी एनर्जी बॉडी की बात। हमारे मेरिडियन का मतलब होता है नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र मतलब हमारे शरीर में जो एनर्जी का प्रवाह है वही नाड़ी तंत्र होता है। जो पूरी एक्यूपंक्चर थेरेपी है, आपने सुना होगा, एक्यूपंक्चर थेरेपी एक होती है जो पॉइंट्स के थ्रू माइक्रो करंट्स दिए जाते हैं, कुछ पाँव में लगा के, कुछ हाथ में, मतलब अलग अलग जगह पे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के थ्रू किसी किसी ऑर्गन्स को करेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनका जो नाड़ी तंत्र है वो पूरा एक्यूपंक्चर में डिजाइंड है, टीसीएम बोलते हैं उसको। और इसमें आप देखेंगे मेरिडियन के सारे प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। एलर्जी मेरिडियन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डीजनरेशन, फैट को डीकम्पोज करने के लिए, गॉल ब्लैडर, जॉइंट्स, स्किन, हार्ट। उसके बाद मेरिडियन 2 में देखेंगे हार्मोनल बैलेंसेस है, सर्कुलेशन, लिवर, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज। किसके लिए? टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो उनका पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को रेगुलेट रिसेप्ट प्रॉपर्ली नहीं करता, उसके लिए हमें उसको करेक्ट करना होता है, तो पैनक्रियाज के लिए प्रोग्राम है। नर्व मेरिडियन, किडनी, ऑर्गन मेरिडियन, ये सारे प्रोग्राम आपके मेरिडियंस में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ हमें मिलते हैं चक्रास। चक्रास का महत्व हमारे एंशिएंट साइंस में, एंशिएंट जो मेडिकल साइंस था उसमें बहुत एनर्जी पे जब वर्क किया जाता था, तो हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे हमको चीजें बताई जाती थी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। उन सब से हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे स्पाइनल के वर्टिकल होते हैं। 7 चक्रास होते हैं, रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन। इसके आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिलते हैं और इनको आप रन कर सकते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूं किस तरीके से प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स लगा के दिखाए थे, उसके बाद मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अभी रूट चक्रा पे काम करना है, तो मैं रूट पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखेंगे मैक्सिमम प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 33 मिनट्स। तो अभी मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को सिर्फ स्टार्ट कर देना है। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है योर प्रोग्राम इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो ये प्रोग्राम जो ट्रांसमिट हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, रूट चक्रा को करेक्ट करने के लिए टाइम वेवर जो कंपनी है उसके हिसाब से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहती है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ सकती है, तो उन सारी फ्रीक्वेंसीज को इसने सेलेक्ट किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया एप्लीकेशन से। कहा? मेरे हीली के डिवाइस के अंदर एक मेमोरी होती है उसमें। अब हीली डिवाइस का क्वांटम सेंसर और वो डिसाइड करेगा मेरी बॉडी को रियल टाइम में एनालाइज करके कौन सी फ्रीक्वेंसी डिलीवर करनी है। तो यही हीली को एक यूनिक बनाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है 33 मिनट्स।
ये रेड सर्कल के पीछे व्हाइट चल रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉपरली करेक्ट मतलब कनेक्ट हुआ है मेरी बॉडी के साथ में। अगर कनेक्ट नहीं होता तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब ये ब्लैक चलेगा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं व्हाइट चल रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली अच्छे से कनेक्टेड है। 583.6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अभी मेरी बॉडी में जा रही है, अब चेंज करके 931.9 हर्ट्ज की जा रही है मेरे रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। तो अभी ये जो नीचे प्लस मैं अगर कर रहा हूं, ये परसेंटेज जो बढ़ रहा है, ये परसेंटेज है सिर्फ इंटेंसिटी के लिए। इससे मतलब ये नहीं, कल किसी ने ग्रुप में भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर कर देता हूं कि परसेंटेज से मतलब है सिर्फ सेंसेशन का। मतलब अगर मैं इसको 15 पे चला रहा हूं और वाइट चल रहा है, और अगर मैं उसको 100 पे चला रहा हूं और वाइट चल रहा है, दोनों सेम चीज है, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। सिर्फ फर्क है इंटेंसिटी का। जैसे 100 पे मैंने इसको किया तो मुझे ये भी मेरे हाथों में थोड़ी झंझनाहट सी फील हो रही है, थोड़ी सेंसेशन फील हो रही है। तो वो सब अपन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर सेंसेशन ज्यादा नहीं पसंद है तो आप उसको कम कर सकते हैं, या कुछ लोग स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो वो उसको कम परसेंटेज पे चलाएं। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है तो उनके जो ये सर्कल है इसको व्हाइट होने में ही टाइम लग जाता है, मतलब जब 60-70% के ऊपर जाएंगे तब जाके वो व्हाइट होगा, मतलब बॉडी के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर तब हो पाएगी। तो ये सिर्फ इंटेंसिटी को दिखाता है, आप इसको कितना इंटेंसिटी पे चला रहे हैं ये टोटल आपके ऊपर होता है। मेन है आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये सर्कल व्हाइट चलना चाहिए, अब चाहे वो 15% पे चल रहा हो चाहे वो 50% पे चल रहा हो, वो अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अभी आप देखेंगे ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बार बार चेंज हो गई हैं। अब 31 मिनट्स का प्रोग्राम है, कोई जरूरी नहीं है ये प्रोग्राम पूरा 31 मिनट्स चले, क्योंकि अब इसका मैंने पूरी जो कमांड है वो पूरी कमांड किसने ले ली है, क्वांटम सेंसर ने ले ली है, इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली है। तो वो डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम कितनी देर तक चलना चाहिए। 31 मिनट मैक्स 33 मिनट मैक्सिमम टाइम था, लेकिन क्या पता ये प्रोग्राम 25 मिनट्स में ही बंद हो जाए, क्या पता ये प्रोग्राम 24 मिनट्स में ही बंद हो जाए। तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करता है इसका क्वांटम सेंसर, कि अगर प्रोग्राम पूरा जो इन्होंने मेरे लिए डिजाइन किया है वो अगर खत्म हो गया है तो उसको बंद कर देगा। तो हीली कभी भी गलत नहीं जा सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम ले रहे हैं तो वो आपके लिए गलत चला जाएगा, गलत कभी नहीं होगा आपके लिए। आप कोई भी प्रोग्राम कैसे भी चलाए, वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्वांटम सेंसर, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो ही डिसाइड करके आपके प्रोग्राम्स को डिलीवर करता है। तो हीली कभी भी नेवर गोज रॉन्ग, हीली कभी गलत नहीं जाता। आप कोई भी प्रोग्राम कैसे भी रैंडम तरीके से भी ले सकते हैं, बट हाँ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो लोग हम अपने ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं कि आपको कब हीली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन किन केसेस में, या एक दिन में मैक्सिमम कितना यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम आप बैक टू बैक मिठाई की तरह प्रोग्राम ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारे दिखते हैं, फिर हमारा मन करता है कि यार ब्यूटी भी ले लेता हूँ, चलो यार रूट चक्रा भी ले लेता हूँ, चलो ये भी ले लेता हूँ। तो ऐसा गलत है ये, आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 प्रोग्राम्स ही लेने होते हैं। उसको फॉलो करते हुए आप लेंगे तो आप अपना जो भी गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। अब इसको मैं अभी यहाँ पॉज कर देता हूँ, क्रॉस करके मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम पेजेस दिखाता हूँ आपको, बायो एनर्जेटिक डिफेंस। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलता है, क्योंकि हीली और टाइम वीवर खुद इसकी महत्वता को समझते हैं कि ये प्रोग्राम कितना सॉलिड है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ये प्रोग्राम वायरलेसली चलता है। वायरलेसली मतलब इसके लिए आपको किसी भी ये जो मैंने वायर लगा रखे इसकी जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं जनरल प्रोटेक्शन पे क्लिक किया, आपने देखा सिर्फ यहाँ एक अलग तरीके का सिंबल बना हुआ है, मतलब सिर्फ आपने हीली को टांग लो, हैंग कर लो, या तो यहाँ पे हैंग कर लिया या फिर अपने पॉकेट के पास में हैंग कर लिया और अपने प्रोग्राम को रन कर लो। तो ये प्रोग्राम जो होते हैं डिफेंसेस के प्रोग्राम है बायोएनर्जेटिक, ये आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके डिफेंस के लिए प्रोग्राम्स है। डिफेंस के लिए मतलब अब मैं इसको थोड़ा कनेक्ट करता हूं हमारे जो पुराने लोग फॉलो करते आ रहे हैं बहुत सारी चीजों को। तो रिचुअल्स तो फॉलो करते आए हैं, लेकिन उसके रिचुअल्स के पीछे का जो साइंस है वो काफी पीछे रह गया, जिसकी वजह से उसको सुपरस्टिशन बता दिया जाता है कि यार नहीं ये तो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ नजर लगना। अब नजर लगना हम लोग सब समझते हैं कि नजर लगती है, ठीक है। अब नजर लगना हमारे पूर्वज बोलते हैं कि नजर लग गई है, इसका नजर उतार दो। नजर लगना मतलब एक अनईजी सी फीलिंग होती है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है बॉडी में, बड़ी अनस्टेबिलिटी सी, बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है वो, और उसी को ही नजर लगना बोल देते हैं। तो नजर लगने का जो साइंस है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। हमारी जो बायो एनर्जेटिक फील्ड है, मतलब जो हमारी
प्राण एनर्जी है, या हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी जिसकी मैं बात कर रहा था, 2 बॉडीज होती हैं, तो हमारी दोनों बॉडी इंटरकनेक्टेड रहती है, हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी आपस में कनेक्टेड रहेंगी, आपस में हमेशा कम्युनिकेट करती रहती हैं, और उसी के कम्युनिकेशन से ये फिजिकल बॉडी चल रही होती है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ना, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो इसके अंदर की प्राण एनर्जी है, वो उसके अंदर की बायो एनर्जेटिक फील्ड है, वही इस फिजिकल बॉडी को ड्राइव कर रही है। अगर इसके अंदर से वो निकल जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि ये जो मेरी जैसे कि उंगली है, इसको मैं अगर इतना फोल्ड कर पा रहा हूं, तो वो इसलिए फोल्ड कर पा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर वो प्राण एनर्जी विद्यमान है, वो एनर्जी अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर पा रहा हूं। किसी डेड बॉडी की आप ये उंगली कभी फोल्ड करके देखना, आप फोल्ड ही नहीं कर पाओगे, मतलब वो इतनी ज्यादा अकड़ जाती है, इतनी ज्यादा कड़क हो जाती है, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। तो इस पूरी फिजिकल बॉडी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो होती है हमारी प्राण एनर्जी, और उसी को बायोएनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है, उसी को स्पिरिचुअल बॉडी बोला जाता है। तो स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब नजर लगना मतलब कि जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो किसी एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो इन्फ्लुएंस में आ गई, उससे होगा क्या कि उसका आपकी फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जब दोनों बॉडी आपस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, तब हमें बड़ा अनईजी सा लगता है। जैसे कभी हम टीवी देख रहे हैं और हमारा नेटवर्क जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो कभी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरीके से होता है ना। तो वही हमारी बॉडी में हो रहा होता है, उसी को हम नजर लगना बोलते हैं, कि हमारे दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्कनेक्शन हुआ है, जो डिस्कम्फर्ट है ना, वही नजर लगना होता है। तो अब इसके लिए क्या करते थे कि दोनों हाथों में नमक लेते थे, नमक लेके क्या होता था, बॉडी के ऊपर क्रॉस में इस तरीके से पूरा घुमाया जाता था, और इस तरीके से उसको फ्लश आउट कर देते थे। तो नमक जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज का सकर होता है, इसलिए नमक को यूज किया जाता था, और नजर उतारने का यही तरीका था। तो क्वांटम फिजिक्स की भाषा से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी में आई हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ताकि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ उसका कनेक्शन वापस प्रॉपर बन जाए और हम वापस करेक्ट स्टेज में आ जाए। तो यही जनरल प्रोटेक्शन प्रोग्राम करता है, आपकी एक तरीके से नजर उतरने वाली चीज करता है, और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिफेंस करता है किसी एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी से। सेकंड, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी डिफेंस है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी डिफेंस प्रोग्राम जो है वो आपको एक्सटर्नल रेडिएशन से बचाता है। जैसे हम लोग आजकल लैपटॉप और मोबाइल फोन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम इन सबसे आसपास घिरे हुए हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है। तो जो भी रेडिएशन इमिट होती है, उसके रेडिएशन के इमिट होने से हमारी जो बायो एनर्जेटिक फील्ड है वो हार्म होती है, रेडिएशन से उसको हार्म पहुंचता है। तो आपने देखा है कि अगर आपने पूरे दिन फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, लेकिन आपने कोई मेंटल वर्कआउट भी नहीं किया, मतलब आप कोई लैपटॉप पे बैठ के कोई कोडिंग नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, बट आप पूरे दिन भर बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे, कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज, तब भी आप उठेंगे ना तो आप बड़ा लेथार्जिक फील करेंगे, आलस सा आ जाएगा, भले ही आपने ना कोई फिजिकल वर्कआउट ना मेंटल वर्कआउट किया है। तो ये जो सिम्टम है किस वजह से है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी जो रेडिएशंस कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, उसी की वजह से आप लेथार्जिक हो जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोटेक्शन है। आजकल जो बहुत आम है, छोटे बच्चों में ग्रे हेयर्स का आना, सफेद बाल जल्दी आना, उसका मुख्य कारण एक यही है, जो एक्सटर्नल रेडिएशंस है, उन रेडिएशन से ये चीजें उनके शरीर में होती हैं। तो आप अपने घर में बच्चों को इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सेल प्रोटेक्शन है, मेंटल, स्लीपिंग, जियोपैथी, सटल, प्लैनेट्स। जियोपैथी स्ट्रेस होता है जो अर्थ की मूवमेंट से हमारी, क्योंकि हम लोग सब एक एनर्जी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो अर्थ की जो मूवमेंट्स होती है उससे भी हमारी बॉडी के एनर्जीज को फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर एरियाज पे, तो उसको जियोपैथी स्ट्रेस बोलते हैं। तो वहां जियोपैथी वर्क करता है। सटल है, प्लैनेट्स है जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं प्लैनेट्स को हार्मोनाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जो हमारी सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी पे वर्क करता है। इसके बाद बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, बायोएनर्जेटिक बूस्ट, बायोएनर्जेटिक, इसमें कोहेरेंस, 2 प्रोग्राम्स होते हैं। दोनों प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे तो ये बायोएनर्जेटिक बूस्ट जो है ये हमारे इम्यूनिटी के लिए होता है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को 25 हर्ट्ज के ऊपर लाने के लिए होता है, ताकि हम जो वायरस और बैक्टीरिया है उसके अटैक से हमारे इम्यून सिस्टम उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो एक स्टडी में यही पाया गया कि अगर हमारी ओवरऑल बॉडी 25 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेटेड रहती है, तो हम किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद भी वो हमारी बॉडी को
हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए बायोएनर्जेटिक बूस्ट प्रोग्राम है, ये आपको वीक में एक बार लेना चाहिए, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। कोविड एरा में ही इन्होंने ये प्रोग्राम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, ताकि आप बाहर आए जाएं तो आप बायोएनर्जेटिक बूस्ट लेके रहें, तो आपकी बॉडी हमेशा 25 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेटेड रहेगी। तो कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल वायरस और बैक्टीरिया आपके बॉडी इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। तो अभी इसका वाइब्रेशन से क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जो लोग नेगेटिव लोग होंगे, या जो लोग सैड होंगे, या जो लोग डिप्रेस्ड होंगे ना, इसका मतलब ये है कि उनकी वाइब्रेशंस बहुत लो होती है। और जब उनकी वाइब्रेशंस लो होती है ना, तो इजीली कोई भी नॉर्मल वायरस और बैक्टीरिया भी उनके इम्यून सिस्टम को अटैक कर देता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप जूम ले रहे हैं, 1000 बार सांस लिए छोड़िए, तो न जाने कितने वायरस बैक्टीरिया अंदर गए होंगे और बाहर निकल गए होंगे, पता भी नहीं चला होगा। लेकिन अगर यही आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो आपकी 25 हर्ट्ज के नीचे वाइब्रेटेड रहती है, तो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को इजीली अटैक कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जो जनरली डिप्रेशन में लोग होंगे, या जो सैड होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे होते हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ही होता है कि उनकी ओवरऑल बॉडी का जो वाइब्रेशंस है वो 25 हर्ट्ज के ऊपर नहीं है। उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वल्नरेबल है, और कोई भी वायरस बैक्टीरिया पेनिट्रेट करके उनकी बॉडी को हार्म पहुंचा देता है। तो बायोएनर्जेटिक बूस्ट वही प्रोग्राम है। कोहेरेंस आपका प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। ये आपका हार्ट एंड ब्रेन हमेशा इंटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इनके इंटर कम्युनिकेशन से ही पूरी बॉडी में डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। डिसीजन मतलब कहाँ कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, या ज्यादा रिलीज हो गया, कम रिलीज हो गया, या क्या सिग्नल्स देने हैं। तो ये हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट जो आपस में हमेशा इंटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी को कोहेरेंट एनवायरनमेंट में लाने के लिए, मतलब वो आपस में उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे, और उसकी वजह से ही कोहेरेंस प्रोग्राम हमको लेना होता है। कोहेरेंस प्रोग्राम लेंगे तो आपका एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, मतलब क्योंकि हमारा हार्ट और ब्रेन अगर सिंक में काम कर रहे होते हैं, तो आप कहीं भी जाते हैं आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, और यही आपको यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कराता है। उसी को ही कोहेरेंस सिचुएशन बोलते हैं, कि आपका हार्ट, ब्रेन और यूनिवर्स तीनों एक अलाइंड एक एक्सिस पे है और तीनों कनेक्टेड है। उसी को कोहेरेंस प्रोग्राम बोला गया है। बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन बहुत एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। ये भी आपको प्रोफेशनल में ही मिलता है। इसमें सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ की नोट्स होते हैं, उनको यूज करके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को करेक्ट किया जाता है। और इवन आनुवांशिक लेवल पे जो एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, आप इसमें लास्ट में देख रहे होंगे एक प्रोग्राम है एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो बोला जाता था कि मतलब ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस में, जो पुरानी मेडिकल साइंस में, कि डीएनए में ट्रांसफर हुई हुई चीजें चेंज नहीं हो सकती, या आनुवांशिक है तो हेरिडिटी है तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन वही है कि वो उस लेवल पे जाके भी वर्क करता है कि उन चीजों को भी करेक्ट किया जा सकता है। जैसे बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आपको सैटरडे में बताते हैं। आज अभी समय की थोड़ी कमी रहती है। इसमें आप देखेंगे बोन्स, टिश्यू स्टेबिलिटी, होलिस्टिक सपोर्ट, नर्व्स, पीनियल ग्लैंड, यूथ, एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन और सेल। नेक्स्ट, डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर। इसके 6 प्रोग्राम पेजेस हैं, 6 प्रोग्राम पेजेस हैं डिजिटल न्यूट्रिशन के। ये आपको एक तरीके का पूरा डिजिटल किट है आपके न्यूट्रिशंस का। आपको ब्रेन, हेयर, स्किन, हार्ट, हेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मसल, नेल्स, नर्व्स, किडनी, ईयर्स, थायराइड, इनके लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी को जरूरत पड़ती है, वो विटामिन्स और मिनरल्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज माइक्रो करंट्स के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। तो ये डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं जो आपको डिजिटली न्यूट्रिशन देते हैं हमारी बॉडी को। और जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी बॉडी किस तरीके से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है मेटाबोलाइज का, आइडेंटिफाई करके और मेटाबोलाइज करना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग दूध, दही, छाछ सब ले रहे हैं, बट स्टिल अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो समझ नहीं आता यार, मैं तो सब खा रहा हूँ, मेरे खाने में सब कुछ है, लेकिन कैल्शियम की कमी कैसे आ गई। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो कैल्शियम के प्रति रिसेप्टिव नहीं है। मतलब वो आप ले तो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको, बॉडी के जो फंक्शंस है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और आइडेंटिफाई करके उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, और ब्रेक डाउन करके उसको यूज नहीं कर रहे जहां जहां यूज करना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप उसको डिजिटली ही करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उन पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स के प्रति रिसेप्टिव हो जाए। अगर आपको फूड में भी मिल रहा है तो उसको अब्सॉर्ब करके वो ब्रेक डाउन करे, तो आपकी बॉडी की
क्षमता बढ़ जाती है विटामिन्स मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके और उनको यूटिलाइज करने की। तो ब्रेन, हेयर इसी तरीके से है कि ब्रेन से संबंधित जो विटामिन मिनरल्स है उनका पूल है। ऐसे डिजिटल न्यूट्रिशन 2 में आप देखेंगे एज, एमिनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, वेट, लिवर, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स, वीगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हाइपोविटामिनोसिस। हाइपोविटामिनोसिस मतलब एक तरीके का मल्टी मिनरल हो गया, सारे मिनरल्स इसमें होते हैं। डिजिटल न्यूट्रिशन 3 में अल्कोहल इनटेक, ये आपके लिवर से संबंधित है। एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, मेंसुरेशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, हार्मोनल सिस्टम, लिबिडो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम, 2 ट्राई प्लांट सब्सटेंस, ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं की फ्रीक्वेंसीज है फ्लेवोनॉइड और क्लेवेनॉइड्स का। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो आपको 2 ट्राई प्लांट सब्सटेंस में मिलेंगे। बहुत छोटा प्रोग्राम है, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसीज का प्रोग्राम है। एनर्जी, फटीग, आईसाइट, स्पोर्ट्स, मैन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, साइकी, स्लीप, ग्रोथ, वाउंड्स। तो वुमेन, चिल्ड्रन मतलब जैसे वुमेन हॉर्लिक्स आता है तो उसमें 70-80% शुगर होती है और बाकी मिनरल्स होते हैं। तो वही जो चीजें हैं वो आपको वुमेन में मिल जाएगी। वुमेन अगर लेंगी इसको तो वो विटामिन मिनरल्स की डिजिटल फ्रीक्वेंसीज बॉडी को मिलती हैं, डिजिटल फॉर्म में आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। चिल्ड्रन जो ग्रोथ स्टेज में है, चिल्ड्रन के लिए बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। स्पोर्ट्स मैन जो वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए है। डिजिटल न्यूट्रिशन 5 में ब्रेथ, मोशन, कॉम्पिटिशन, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन, रिडक्शन, एक्सर्शन, सर्कुलेशन, रिजिडिटी, लाइफस्टाइल, एनर्जेटिक। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है और ये सारे आपको सिर्फ और सिर्फ हीली के प्रोफेशनल एडिशंस में ही मिलते हैं। टिश्यू, बायो इन्फॉर्मेशन, कंफर्ट, एग्जॉशन, मेनोपॉज, पैशन, बैलेंस, रिलीफ, जॉय ऑफ लाइफ, रिक्रिएशन, रेस्ट, टीथ। तो इसके बाद डिजिटल न्यूट्रिशन के बाद लास्ट प्रोग्राम जो है ये है द पावर ऑफ 3। द पावर ऑफ 3 जो प्रोग्राम है बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है और ये एक तरीके का आपका, इसको हम बोलते हैं डिजिटल आयुर्वेदा। डिजिटल आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा जो हमारा है वो किस पे बेस्ड है? आयुर्वेदा के मतलब जो हमारे एंशिएंट विजडम है उसमें आयुर्वेदा ही है जो मेडिकल साइंस था। और हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्व से मिलके बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है और उन्हीं से हमारे काफ, वात और पित्त को बैलेंस किया जाता है। अगर वो तीनों प्रॉपरली बैलेंस्ड होते हैं तो हमारी ओवरऑल बॉडी बैलेंस्ड होती है। तो काफ, वात और पित्त के इसमें आप देखेंगे सेंटर में प्रोग्राम्स दे रखे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने क्लासिकल, फिजिकल, क्लासिकल एनर्जेटिक, जैपर प्रोटोकॉल जो यूनिवर्सल एनर्जीज है उनको भी इन्होंने इसमें मर्ज किया है। कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, डिफेंस सपोर्ट, फ्रेंडली फ्लोरा, जो मेंटल इम्बैलेंसेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रेंडली फ्लोरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। रीबैलेंस। तो ये पावर ऑफ 3 पूरा एक तरीके से डिजिटल आयुर्वेदा है। इसको आयुर्वेदा को आप डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट एक्सपर्ट प्रोग्राम जो कि ब्लैंक है। मतलब इतने सारे प्रोग्राम दिखाने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे मेरे हिसाब से कोई कस्टमाइज प्रोग्राम ही चाहिए, मेरे पास इसमें प्रोग्राम नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप इनके टाइम वेवर थेरेपिस्ट हैं जर्मनी में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे जूम मीटिंग आपकी होगी, आप वो आपसे सारी जानकारी लेंगे, कंसल्ट करेंगे, फिर आपके लिए कस्टमाइज प्रोग्राम बना के आपको दे देंगे। और वो प्रोग्राम जब देंगे आपको तो वो आपके हीली में एक्सपर्ट प्रोग्राम में आके दिखने लग जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स के बाद भी आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप अपनी बीमारी के हिसाब से कस्टमाइज प्रोग्राम भी बनवा सकते हैं। उसका वो कुछ सर्टेन चार्ज लेते हैं और वो आपको बना के दे देंगे, आप उन प्रोग्राम्स को भी ले सकते हो। तो ये था हीली का पिंक एप्लीकेशन जो माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी बॉडी को की सेल्स को रिजुविनेट करता है। आपने देखा होगा कितने सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद सेकंड में आपको बताता हूं हील एडवाइजर सर्च के बारे में। इतने सारे प्रोग्राम बता दिए, अब कंफ्यूजन ये आ गया कि मैं कौन सा प्रोग्राम लूं या मेरी बीमारी के हिसाब से कौन सा प्रोग्राम मुझे लेना चाहिए। तो उसकी समस्या के हल के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है हील एडवाइजर सर्च, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है। ये आपको रेकमेंड कर देगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम किस तरीके से लेना है और आपका एक शेड्यूल क्रिएट कर देगा। उस शेड्यूल में आप अपनी बीमारी के हिसाब से प्रोग्राम लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं सर्च करता हूँ हीली IMF प्रोग्राम, अभी किसी ने शायद चैट में डायलिसिस के बारे में पूछा है, मैं पहले डायलिसिस ही सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने अगर सर्च किया डायलिसिस, आप देखेंगे सेकंड नंबर पे डायलिसिस आ रहा है। मैंने डायलिसिस पे क्लिक किया तो इसने मेरे को प्रोग्राम के रिकमेंडेशंस दे दिए नीचे, किडनी, टॉक्सिन्स, लिवर,
ऑर्गन मेरिडियन, फाइन फ्लो, रिन्यूअल, फर्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, क्लीन ऑल, किडनी ऑल, मेल फीमेल, प्योर, बैलेंस, ब्लड, एंटीऑक्सीडेंट, किडनी, बायो इन्फॉर्मेशन, एग्जॉशन। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स का लिस्ट दिया है इसने 27 प्रोग्राम्स का, इन 27 प्रोग्राम्स को मैं ऐड सर्च रिजल्ट्स टू आईएमएफ शेड्यूल अगर करता हूं तो ये मेरा पूरा एक कैलेंडर बना देगा। उस कैलेंडर में मेरे को कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने हैं, जैसे आज सुबह मैंने किडनी ले लिया, कल मैंने टॉक्सिन्स ले लिया, फिर मैंने लिवर ले लिया, फिर ऑर्गन मेरिडियन ले लिया नेक्स्ट डे, फिर फाइन फ्लो ले लिया दोपहर में, रात को मैंने रिन्यूअल ले लिया। तो ये एक दिन में 3-3 प्रोग्राम्स करके आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम आपने प्रोग्राम्स लिए 3-3 4-4 घंटे के गैप्स में, तो आप 15-20 दिन के अंदर आप इसमें विजिबल रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन शायद किसी ने टाइप किया है, कॉन्स्टिपेशन में मैं क्लिक करूं तो यहां देखेंगे आप लार्ज इंटेस्टाइन, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेशन, टॉक्सिन्स, फटीग, एनर्जी, डाइजेस्टॉल, क्लीनॉल, तो ये सारे प्रोग्राम इसने वापस रिकमेंड कर दिए। तो बस आपको यहाँ टाइप करना है, आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, वो प्रोग्राम्स आप लीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, 15 दिन 20 दिन फॉलो करेंगे, आपको ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स आपको दिख जाएगा। और हीली ऑलरेडी 30 डेज की मनी बैक गारंटी पे मिलता है, आप ले इस्तेमाल करें अच्छे से। जब आपको उसमें विश्वास हो जाएगा तो आप खुद ही उसको रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न की रेट ही नहीं है, 97% लोग इसको रिटर्न नहीं करते, 3% रेट है रिटर्न का। तो ये प्रोग्राम्स आप लेंगे आपको मिल जाएगा। और एक प्रोग्राम अगर मैं कोई सर्च करके यहाँ बता दूं आपको, तो जैसे डायबिटीज मोस्ट कॉमन, डायबिटीज पे अगर मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे स्प्लीन, पेनक्रियास, लिवर, फाइन फ्लो, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोन। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था बीपी के लिए, जब डायबिटीज की चीजें जा रही होती है तो बीपी का ऊपर नीचे होता है, तो बीपी को कोई बैलेंस करना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोन, नर्व मेरिडियन। तो ये सारे प्रोग्राम्स का रिकमेंडेशंस आपको हीली का एडवाइजर सर्च एप्लीकेशन दे देता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, कोई बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है इजीली। तो यही थे हीली की पिंक एप्लीकेशन और हीली का एडवाइजर सर्च। अब मैं इनवाइट करता हूं दिनेश मिश्रा जी को, जो आएंगे और यहाँ पे आपको हीली का जो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, पिंक एप्लीकेशन एनालिसिस ऐप, उसके बारे में आपको बताएं। तो दिनेश जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच अवनीश जी, इस बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे से आपने ये पिंक एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो जो भी हमारे नए यूजर्स होते हैं या जो पहली बार हीली को देख रहे होते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि मतलब एक ही पहली बार में थोड़ा सा चीजें, कंटेंट ज्यादा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर दोस्तों, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, इतने सारे क्षेत्र में घुसती है, इतने जगह इसका पेनिट्रेशन है कि थोड़ा सा समय लग जाता है, और हमेशा हम हर बार की तरह 5-10 मिनट एक्स्ट्रा शूट कर जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हीली दोनों बॉडीज पे काम करता है। फिजिकल बॉडी, जिसमें हमारी सेल्स को माइक्रो करंट हीली प्रोवाइड करता है वाया पिंक एप्लीकेशन, जिसमें कि 229 प्रोग्राम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एडिशन जो आपने चुना है, जैसा कि अभी अवनीश जी ने दिखाया। अब उन 229 में से सर्च इंजन जो अभी लास्ट में अवनीश जी ने दिखाया, जिसको कि एडवाइजर ऐप बोलते हैं, जिसमें कि आप चुन सकते हैं कि उन 229 में से इस वक्त या आपकी जो समस्या है उसके हिसाब से किन प्रोग्राम्स की आपको जरूरत है, तो जो सर्च करके आप पता लगा सकते हैं। अब हीली के जो टॉप के 3 एडिशंस होते हैं, रेजोनेंस प्लस एंड प्रोफेशनल, इन 3 एडिशंस में आपको एक और एप्लीकेशन की एक्सेस मिलती है, जिसको हील एनालाइज एडवाइज ऐप बोला जाता है। हीली का लोगो होता है और बीच में ब्लू कलर का एक आइकन बना होता है, इसलिए हम उसको हीली का ब्लू एप्लीकेशन बोलते हैं, हीली का ब्लू ऐप कहते हैं। तो हीली का ब्लू ऐप बेसिकली, जो मर्कश किमिके की भाषा में या टाइम वेवर की भाषा में बोला जाए, तो वो कहते हैं इसको थेरेपिस्ट प्रोग्राम। तो आप अगर बहुत ज्यादा थेरेपी में समय नहीं गुजारना चाहते हैं और आप एक किस्म से एंड यूजर हैं जो अपने परिवार की वेलबींग वेलनेस के लिए ले रहे हैं और बहुत आपके पास समय नहीं है, तो आपके लिए पिंक एप्लीकेशन और एडवाइजर ऐप जो अभी अवनीश जी ने बताया, दैट इज वेरी गुड एंड सफिशिएंट, वही क्योर करेगा। क्योंकि हीली डिवाइस का नाम है आईएमएफ डिवाइस, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी। मगर जैसे कि डिवाइस बहुत पावरफुल है और आप इसके और
फीचर्स को और पावर्स को अनलीश करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये जो ब्लू एप्लीकेशन में बताने वाला हूं इस पे भी आ सकते हैं। तो ब्लू एप्लीकेशन के लिए मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा मोबाइल की। तो सबसे पहले हम हीली को ऑन कर देते हैं, और हीली को ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद में मैं आपको मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिखाता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये कैसे यूज होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे लेफ्ट में जो पिंक डॉट ऐप है वो अवनीश जी ने बताया। नंबर 3 का जो एप्लीकेशन हील एडवाइजर ऐप वो भी अवनीश जी ने बताया। उसके बगल में हीली वॉच ऐप दिखता है, वो तभी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है अगर आपने हीली की वॉच भी खरीदी हुई है, तो अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी जो हीली के लोगो में ब्लू ब्लू आइकन बना हुआ है, ब्लू डॉट ऐप, मैं उसको लॉन्च कर रहा हूं। ये आपको एनर्जी के तौर पे डायग्नोस एंड आइडेंटिफाई करता है। ऐप जब शुरू होता है तो आपके पास में अगर रेजोनेंस प्लस है या प्रोफेशनल एडिशन है तो तीनों डेटाबेसेस दिखते हैं, रेजोनेंस, कोचिंग और ऑरा, तीनों दिखता है। बट आपके पास अगर सिर्फ रेजोनेंस एडिशन है तो आपको उसमें सिर्फ एक ही दिखेगा, आपको सिर्फ रेजोनेंस एनालिसिस दिखेगा, क्योंकि रेजोनेंस प्लस में ये तीनों आ जाते हैं। तो रेजोनेंस प्लस में और प्रोफेशनल में तीनों आते हैं, रेजोनेंस में सिर्फ एक ही स्कैन आता है। तो सबसे पहला काम जो आपको इसमें करना होता है, मतलब इससे हम क्या क्या किए जा सकते हैं मैं वो बता रहा हूं, मगर हम कुछ भी करें उसके पहले हमें प्रोफाइल इसमें बनाना पड़ता है। प्रोफाइल बनाने के लिए हम पहले होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद क्लाइंट्स चुनते हैं, ऐड न्यू क्लाइंट करना होता है। तो आप देखिए प्रोफाइल किसका किसका बना सकते हैं आप, पर्सन का, एनिमल का, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, अदर्स, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है। आप एक जानवर का प्रोफाइल बना के उसको हीलिंग दे सकते हैं, आप एक घर का प्रोफाइल बना के उस घर को हीलिंग दे सकते हैं, घर को बायोनेस्टिक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लाइंट्स में जाकर के प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे गया, क्लाइंट्स चुना, ऐड न्यू क्लाइंट मैंने किया, पर्सन चुना। तो पर्सन डालने के बाद यहाँ पे फोटो डाल दीजिए, वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर दीजिए, बाकी डिटेल डाल दीजिए। इस तरीके से अभी जैसे हम ट्रेनिंग सैटरडे को करते हैं, कल हमारा ट्रेनिंग सेशन था, तो उसमें डिटेल में मैंने ये सब बताया था कि ये सब कैसे होता है। तो प्रोफाइल बनाना बहुत ईजी होता है, इसका हमारा वीडियो, उसको भी देख के आप सीख सकते हैं। ये डिटेल्स बस डालना होता है, प्रोफाइल बन जाता है। आपने प्रोफाइल बना लिया, अब बीच की स्क्रीन पे आ जाइए। आप किसी भी प्रोफाइल के ये 3 तरीके के स्कैन कर सकते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले ऑरा एनालिसिस से। तो ऑरा एनालिसिस जब आप क्लिक करते हैं, अब किसी का प्रोफाइल चुनते हैं, मान लीजिए मैंने अपना प्रोफाइल चुना, दिनेश नाम से बना हुआ है, रिकॉर्ड ऑरा करता हूं। तो ये हीली का जो एप्लीकेशन है वो मेरी हीली को लोकेट कर रहा है, उसको सर्च कर रहा है ब्लूटूथ से। हीली इस वक्त ऑन होनी चाहिए तभी खोज पाएगा उसको। तो ये मेरी हीली इसको मिल गई है, मैंने कनेक्ट कर दिया। हीली का क्वांटम सेंसर मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन करके मेरे चक्रों की एनर्जी निकाल चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब मेरे लेफ्ट से रूट चक्र, देन सैक्रल प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, फोरहेड, सबकी एनर्जी आ रही है। और राइट मोस्ट जो टोटल दिख रही है, टोटल एनर्जी आ रही है। थोड़ी सी 1-2 दिनों से मेरी जो हल्का सा सर्दी जुकाम अभी हुआ है, तो इस वजह से ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो आ रहा है, हल्का सा गले में खराश है। तो ऑफ कोर्स कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी है, बस हीली के प्रोग्राम सुबह शाम चल रहे हैं और काफी राहत है, ऑलमोस्ट ठीक है। अभी जैसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। कल भी रात को मैंने 2 घंटे का सेशन लिया था लगातार। तो मतलब दैट्स द पावर ऑफ हीलिंग। देन स्टार्ट एनालिसिस। स्टार्ट एनालिसिस करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये हीली मेरे लिए जो भी चक्रों के एनर्जी बैलेंस है उसके लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। इस रिपोर्ट को, क्योंकि थेरेपिस्ट प्रोग्राम है, आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्शन में जा करके शो पीडीएफ कर सकते हैं, तो पीडीएफ दिख जाएगा, उसको आप किसी को भेज सकते हैं।
मगर आप सिर्फ घर में यूज कर रहे हैं, आपको थेरेपिस्ट नहीं है, आपको अपने लिए यूज कर रहे हैं, परिवार के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वाइब्रेट में जाइए। वाइब्रेट में जाने के बाद आप वहां टाइम चुन लीजिए। मान लीजिए मैंने 17 सेकेंड 875 मिली सेकेंड चुन लिया, स्टार्ट कर दीजिए। तो अब ये जो हीली है, इसका क्वांटम सेंसर एफर्मेशन सेंड कर रहा है मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड में, और ये काम ये डिस्टेंस से भी कर सकता है। इसके लिए जो पेशेंट है उसका हीली के पास होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ब्लू एप्लीकेशन से हम एफर्मेशन सेंड करते हैं वो डिस्टेंस में भी जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ क्वांटम एंटेगलमेंट से हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगाना होता, कोई भी हीली के पास होने की भी जरूरत नहीं है, और ये एनर्जी हीलिंग इस तरीके की यहाँ होती है। अभी जो ऊपर कोड लिखे हैं 94%, 8 LMCD, इन सब के भी अपने डिटेल्ड मतलब होते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो इनके अर्थ समझ सकते हैं। हमने इसके लिए भी कल की ट्रेनिंग में मैंने शो किया था, इसके भी PDF और लिटरेचर्स होते हैं जो हम टीम के साथ शेयर करते हैं। इसमें एक और फैसिलिटी ये होती है कि आप यहाँ पे एक्शंस में जाके ऐड मैनुअली में कस्टम वाइब्रेशंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई वाइब्रेशन है जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है, तो आप अपनी मर्जी से भी वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो जरूरत पड़े तो आप उनको अपने उनको अपनी इंफॉर्मेशन फील्ड में सेंड कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं वापस जाता हूं और आता हूं रेजोनेंस एनालिसिस में, तो रेजोनेंस एनालिसिस में मैं अगर जाता हूं, मेरा प्रोफाइल चुनता हूं। नॉर्मल हीलिंग कैसे दी जाती है मैं आपको पहले वो बता रहा हूं। आप डेटाबेस में जाइए और डेटाबेस में जाके ऑल हीली प्रोग्राम चुन लीजिए। सब कुछ हीली पे छोड़ दीजिए कि भाई यू डिसाइड मुझे क्या जरूरत है या इस पेशेंट को क्या जरूरत है। तो ऑल हीली प्रोग्राम चुन लीजिए। स्टार्ट एनालिसिस थंब लगाना होता है सो दैट हीली मेरी अटेंशन चाहता है कि आई शुड फोकस ऑन द पेशेंट। और बस इसके बाद जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो आप बस एक्शन पे जाइए और वाइब्रेट कर दीजिए। यहाँ पे टाइम चुनना होता है। नॉर्मली हम 37 सेकेंड 843 मिली सेकेंड चुनते हैं फॉर एक्यूट इश्यूज, और बस स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से जो हीली है वो एफर्मेशन सेंड कर रहा है मेरी बायोइनर्जिटिक फील्ड में, मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड में, और ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है। तो 37 सेकेंड की हीलिंग बैक टू बैक 8-9 बार दिन में ली जा सकती है। ये डिस्टेंस हीलिंग हो रही है। इस वक्त आपको या जो पेशेंट है जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं उसको हीली के पास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा काम डिस्टेंस से भी होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, मगर रिजल्ट में समय लग सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे बटन चालू की उधर बल्ब जल गया, इतना इंस्टेंट नहीं होता। इट टेक्स सम टाइम, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर फोकस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई मानसिक रोगी है, मतलब आप समस्या जानते हैं, तो जब डेटाबेस अभी मैंने चुना था, आपने देखा होगा, रेजोनेंस में गया, मेरा प्रोफाइल चुना। अब किसी को कोई मानसिक इश्यू है, कोई मानसिक तौर पे परेशान है, तो आप ऑल हीली प्रोग्राम मत चुनिए, आप मेंटल बैलेंस चुन लीजिए। इसी मेंटल बैलेंस दिया हुआ है। आपको सिर्फ ब्यूटी पे काम करना है तो ब्यूटी चुन लीजिए। आपको लग रहा है कि सिर्फ आपको जो किसी एनिमल का प्रोफाइल है तो एनिमल प्रोग्राम चुन लीजिए। आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है मकान में या पर्सन में, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए आप चुन लीजिए हीली बायोएनर्जेटिक डिफेंस प्रोग्राम, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप उस पर्सन के लिए एनर्जी बैलेंस करने के लिए जेम्स का या जो कुछ स्टोन होते हैं उनका यूज करना चाहते हैं, तो उस पर्सन को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, उसके लिए अलास्कन जेम एलेक्सिर पहला प्रोग्राम है। उसमें आप स्कैन करिए तो हीली आपको बता देगा कि इस पर्सन को इस प्रोग्राम की आवश्यकता है या ये इस स्टोन की आवश्यकता है। तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी है, ब्लैक फ्लावर रेमेडी है, क्रिएटिव होम्योपैथी साइकी है, और सारे हीली के जो प्रोग्राम पेजेस अभी अवनीश जी ने दिखाए थे वो सभी हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई चोट है, कोई वुंड है, तो आप स्किन प्रोग्राम चुन लीजिए और उसको एफर्मेशन में सेंड कर दीजिए। मतलब आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पे पेजेस चुन सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए वाइटल सब्सटेंसेस भी हैं। वाइटल सब्सटेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं। आप देखिए कोबाल्ट, कॉपर, पोटेशियम, आयोडीन, ग्लूटामिन एसिड, ग्लूटामेट, मतलब ये डेटाबेस काफी रिच है। वाइटल सब्सटेंसेस भी आप एफर्मेशंस के द्वारा किसी को दे सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार या तो आप चुनिए,
अब जैसे आपने देखा होगा भी, अमरीश जी ने बताया कि न्यूट्रिशन के इसके अंदर 72 प्रोग्राम्स हैं मगर आपको तो पता नहीं ना कि आपको कौन सी डिफिशियंसी है, आपको कौन सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेना है, तो आपको पता नहीं है। तो आप ब्लू ऐप में आइए, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिजी न्यूट्री मिक्सचर प्रोग्राम, 72 ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। इसको सिलेक्ट करिए, स्टार्ट एनालिसिस कर दीजिए, तो आपको ये बता देगा कि जो न्यूट्रिशन के 72 प्रोग्राम्स है उसमें से किन प्रोग्राम्स की इस पर्सन को आवश्यकता है परसेंटेज वाइज। ऐसे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि भाई देखिए यहां से भी प्रोग्राम पता लगा सकते हैं, और जो सर्च इंजन जो अभी दिखाया था अवनीश जी ने, एडवाइजर ऐप, वहां से पता कर सकते हैं। बट एडवाइजर आपके हिसाब से रिकमेंड नहीं कर रहा। एडवाइजर से आप ये नहीं पूछ सकते कि बताओ मेरे को न्यूट्रिशन कौन सा लेना है, वो तो आपको बीमारी के नाम के हिसाब से बताएगा। मगर ये जो एप्लीकेशन है ब्लू ऐप, ये आपको स्कैन करके आपके हिसाब से आपको किन प्रोग्राम्स की जरूरत है वो ये बताने वाला है। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है जो कि रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल के साथ में आपको मिलता है। वापस आते हैं, तीसरे तरीके का स्कैन होता है कोचिंग एनालिसिस। कोचिंग एनालिसिस के अंदर जब आप जाते हैं, यहाँ पे आपको फोकस मेंशन करना पड़ता है कि आप किस एरिया में वर्क करना चाहते हैं। लाइक आई एम वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, मतलब मेरा डिजायर्ड गोल क्या है, मैं क्या चाहता हूं, ये मुझे डालना होता है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देखिए कैरियर है, इमोशनल बैलेंस है, फैमिली रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, गोल है, पर्सनल रिलेशनशिप है, पोटेंशियल है, सेल्फ वर्थ है, सोशल रिलेशनशिप्स है, स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि भाई मुझे आप एक एफर्मेशन बता दीजिए फाइनेंस से, 1 डाल दिया। मुझे एक बता दीजिए पर्सनल रिलेशनशिप से, फिर मुझे 2 बता दीजिए स्पिरिचुअलिटी से। मैं हीली को अपनी प्रेफरेंस बताता हूँ, जो नंबर डाला है मैंने 1 1 2, मैं हीली को अपनी प्रेफरेंस बताता हूँ कि मुझे किस डेटाबेस से कितनी रिकमेंडेशंस चाहिए। और इसके बाद में मैं फिर से कर दूंगा यहाँ स्टार्ट एनालिसिस, तो मेरी चूज की गई प्रायोरिटी के हिसाब से हीली मेरी इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन कर रहा है, मेरे लिए रिपोर्ट जनरेट किया है। अब बस मैं इसको वाइब्रेट कर दूंगा, वाइब्रेट, यहाँ पे मैंने टाइम चुन लिया, स्टार्ट। मतलब आप समझना पढ़ना चाहते हैं तो अथाह ज्ञान का सागर है, मगर आपके पास समय नहीं है, यूज करना चाहते हैं तो हार्डली इट टेक्स 2-3 मिनट्स टू स्टार्ट सेंडिंग द एफर्मेशंस इनटू योर इंफॉर्मेशन फील्ड। मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से फटाफट इसको शुरू किया जा सकता है और आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में इसको कॉपी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका यूज बेहद आसान है, और आप घर का प्रोफाइल बना के घर की नेगेटिव एनर्जी कर सकते हैं, इसमें जानवर का प्रोफाइल बना के जानवरों को क्योर दे सकते हैं। हमारी टीम में हमें इवन ऐसे भी लोग हैं जिनको गायों में मतलब काऊ के मिल्क का यील्ड तक भी बढ़ा हुआ है, ऐसे फायदे भी मिले हुए हैं। तो ये काफी रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही अलग अलग स्तर पे काम करता है। तो हमने ये देखा है कि जो पिंक ऐप है, शुरुआत आप उससे करिए, 10-15 दिन जब कंफर्टेबल होते हैं उसके बाद आप ब्लू ऐप में आ जाइए। अभी हम लोगों का ये तीनों एप्लीकेशंस को दिखाने का काम पूरा हो गया है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ हीली के जो प्रेजेंट एडिशंस हैं वो अभी किस तरीके के हैं। तो आप ये देखिए, हीली के आते हैं ब्रॉडली 5 एडिशंस। एडिशन कोई सा भी ऑर्डर करिए, जो हार्डवेयर आता है वही आता है, जैसा कि अवनीश जी ने आपको दिखाया था। जो इलेक्ट्रोड वगैरह है या हीली का बॉक्स है वो सेम आएगा। आप चाहे गोल्ड ऑर्डर करिए 41,000 रुपए का, या फिर आप प्रोफेशनल ऑर्डर करिए 229 का, आपको सेम बॉक्स आएगा। गोल्ड में 10 प्रोग्राम्स आते हैं, होलिस्टिक में 61 प्रोग्राम्स आते हैं, रेजोनेंस में 98 आते हैं, रेजोनेंस प्लस में 124 आते हैं, प्रोफेशनल में 229 आते हैं। सब किसी के साथ एक मॉड्यूल तो आता ही है जिसको हील एडवाइजर सर्च मॉड्यूल बोलता है, जो अवनीश जी ने अभी दिखाया था लास्ट में, जहां पे कि आप सर्च करके प्रोग्राम पता कर सकते हैं। वो हर एडिशन के साथ आता है। गोल्ड में 1 मॉड्यूल जो लिखा है वो वही है, होलिस्टिक में 1 मॉड्यूल लिखा है वो वही है। अभी एक ऑफर चल रहा है मई में कि जो होलिस्टिक है 61 प्रोग्राम 1 मॉड्यूल वाला 82,780 रुपीज का, उसको आप अभी 41,352 में हासिल कर सकते हैं। ये अभी मई एंड तक ये ऑफर चल रहा है कि होलिस्टिक को आप ले सकते हैं 41 में।
और रेजोनेंस प्लस को जो 2,06,000 का है अप्रोक्स, उसको आप 1,23,000 में ले सकते हैं। तो ऑफर अभी फिलहाल चल रहा है रेजोनेंस प्लस में और होलिस्टिक में। होलिस्टिक आप ले सकते हैं 41 में, रेजोनेंस प्लस को 2,06,000 वाला आप ले सकते हैं 1,23,000 में। होलिस्टिक और गोल्ड में रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें आपको ब्लू ऐप नहीं मिलता। जो मैं आपको दिखा रहा था जो कि थेरेपिस्ट प्रोग्राम है, जो ब्लू ऐप है, वो आपको होलिस्टिक में नहीं मिलता है, गोल्ड में नहीं मिलता है, वो मिलता है रेजोनेंस में। मगर रेजोनेंस में आप देखिए आपको सिर्फ रेजोनेंस मॉड्यूल मिलता है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। और ये जो वाई 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 लिखा है, खाली ये प्रोग्राम पेजेस आपको मिलते हैं रेजोनेंस के अंदर में। तो रेजोनेंस के अंदर में आप देख सकते हैं ये जो टॉप का येलो वाला हिस्सा, देन ग्रीन, एंड देन ये जो लाइट ब्लू वाला हिस्सा है, ये रेजोनेंस में मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा एडिशंस बिकते हैं इसके, वो रेजोनेंस प्लस बिकता है और प्रोफेशनल बिकता है। रेजोनेंस प्लस में अभी ऑफर है तो ये सबसे ज्यादा अभी यही बिक रहा है इस वक्त। और रेजोनेंस प्लस में और प्रोफेशनल में आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स का काफी ज्यादा अंतर है। 124 है इसमें और उसमें 229 है। क्या अंतर है नीचे देखिए, आप यहाँ पे नीचे आ जाइए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इनमें अंतर क्या है। बायोनेस्टिक डिफेंस सिर्फ प्रोफेशनल में आता है। जॉब, ब्यूटी, डिजिटल न्यूट्रिशन, बायो वाइटलाइजेशन, जो सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज बताई थी अवनीश जी ने, ये सारे जो प्रोग्राम है 8+7+6+72+12, ये खाली प्रोफेशनल के अंदर आते हैं, रेजोनेंस प्लस में आपको नहीं मिलता है। तो सबसे जो बढ़िया एडिशन है, खास करके जो न्यूट्रिशन मॉड्यूल है, ये आता है सिर्फ प्रोफेशनल के साथ। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इसके कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। अगर खाली आप न्यूट्रिशन भी देख लें तो भी इसका कॉस्ट जस्टिफाई हो जाता है। तो ये थे डिटेल्स अभी हीली के एडिशंस के जो अवेलेबल हैं। तो फटाफट आप अपना हीली ऑर्डर करिए। हीली ऑर्डर करने के लिए वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मगर हमारा जो टीम सपोर्ट है वो मतलब सिर्फ आपको हीली खरीदने तक नहीं है, उसके बाद भी हम अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं। जैसे कल भी 2 घंटे का सेशन किया था यूज पे। फिर आपके बिजनेस डेवलपमेंट में मदद करने के लिए भी हमारे सेशंस होते रहते हैं। और बेसिकली हीली आप ले कहीं से भी चढ़ कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट है या हीली का अच्छा यूज है, वो हमारी टीम हीलिंग फॉर वर्ल्ड के साथ जुड़ के, शैलेंद्र तिवारी जी के साथ में जुड़ के ही आपको मैक्सिमम उसका फायदा मिलने वाला है। तो फटाफट हीली को ऑर्डर करें। आप यहाँ पे जिसके भी इनविटेशन से आप आए हैं उसी को संपर्क करें, जिसने भी आपको मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, जो भी आपका स्पॉन्सर है हमारे टीम का बंदा, आप उसके नीचे जुड़े। आपको फिर भी हमारे टीम का और हमारा पूरा सपोर्ट हर समय उपलब्ध रहेगा। हीली एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपने छोटे से गांव में बैठ के भी पूरे दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, जबलपुर में मेरी अपनी एक आईआईटी की कोचिंग है, मैं बहुत अच्छा भी मैथ्स पढ़ा लूंगा, कितना भी अच्छा मैथ्स पढ़ा लूंगा मैं, तो मेरे पास मेरे कोचिंग में जो बच्चा पढ़ने आता है वो बच्चा जबलपुर का ही आएगा। सिंगापुर का बच्चा मेरे पास पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास कनाडा का, मेरे पास यूएस का बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। बट हीली ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं पूरे दुनिया मेरे लिए ओपन है, मैं कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ इस नॉलेज को शेयर करके, जो कि बहुत इजीली वीडियोस के थ्रू शेयर की जा सकती है। तो आपका जो भी बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा कांटेक्ट हीली के साथ भी डिवोट करिए, उसको ग्रो करने में हम आपको आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये जो बिजनेस है, वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, स्केलिंग आसान है, अलग अलग ज्योग्राफी तक आप बहुत आसानी से काफी जल्दी पहुंच सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डोर टू डोर जाने की भी कई बार जरूरत नहीं होती। हमने इतने वीडियोस बनाए हुए हैं कि वो वीडियोस ही आपके लिए काफी हैं, आपके टीम डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए काफी होते हैं। ब्रोशर्स है, बहुत सारे टूल्स किट, हमने सब कुछ बनाया हुआ है आपके सपोर्ट के लिए। तो हीली आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी मतलब वास्तु में भी जाता है, पेन में जाता है, चक्र बैलेंसिंग में जाता है, न्यूट्रिशन में जाता है, लर्निंग में जाता है, मेंटल बैलेंस में जाता है। इतने सारे एरियाज में हीली का पेनिट्रेशन है और कंपटीशन कोई नहीं है। और इससे ज्यादा की हमें क्या जरूरत है। इनकम प्लान इतना बढ़िया है कि अगर आप पहले महीने में 3 डिवाइस भी 1,23,000 के सेल करते हैं तो आपको लगभग 1,05,000 1,10,000 रुपए मिल जाते हैं, प्लस एक फ्री हीली रेजोनेंस भी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसका पूरा बिजनेस का फायदा उठा सकते हैं। तो
मैं देख रहा हूं कि कुछ हैंड रेजेस हैं, तो मैं अलाउ कर रहा हूं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मगर जिसका मैं नाम लूं प्लीज वही अनम्यूट करिए ताकि एक साथ ना हो,